Hello everyone, welcome back. This is your sixth lecture of Intermediate Macroeconomics 2, and today we will revise what we have already discussed. So technically this is your revision class. So you might have gone through our holy offer. So in our holy offer, it was that if you are a student of DU studying in semester 2 or semester 4, then you can take our courses at a price of rupees 1000 per paper. Okay, and the deadline is till 20th of March. So hurry up, avail the discount. You can check that from our Instagram or YouTube channel, whichever account you want to see. You can get the details of the offer. If you want to take a course of Intermediate Macroeconomics 2, then you can get that course at rupees 1000. If you want to take the course of Intermediate Microeconomics 2, then you can pay rupees 1000 and get that course. If you want to take the course of Econometrics, then also you have to pay 1000 only and get the course of the full semester. Okay, so technically if you want to take all the three papers together, then you have to pay only 3000 rupees, and same goes for students of semester 2. In semester 2 we have papers of Intermediate MME and Stats, and then we have Introductory Macroeconomics. So if you want to take a course of Introductory Macroeconomics, then you can get the course at rupees 1000. And if you want to take the course of Intermediate MME, then you can get that course at rupees 1000 only. And if you want to take the course of Intermediate Statistics, then also you have to pay only 1000 rupees to get that paper. So if you want to take all the three papers together, then you have to pay only 3000 rupees. Okay, so avail the offer, and the deadline is 20th March. So before 20th March you have to reach out to us to get the available courses and can prepare your semester courses accordingly. Okay, so coming on to this lecture, so technically we will be revising whatever we have already discussed. So in lecture 1 we talked about monetary policy. ठीक है, monetary policy कौन decide करता था? So monetary policy was decided by our central bank, and central bank has the policy choices either to choose money supply or inflation targeting, or it can use its policy of interest rate. So these are its policy instruments and policy targets. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द regime that the central bank is following. ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है. अभी के लिए बस ये याद रखो कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, और इसमें कौन सा कर्व चेंज होता था? LM कर्व. सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, वी वर टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट्स और मूवमेंट्स ऑफ द LM कर्व. ठीक है, इसका आप याद रखना. अब इसमें हमने देखा था रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो थ्रू फिलिप्स कर्व वी टॉक्ड how the expectations impacted the decision making of economic agents. And who were the economic agents? Economic agents were people and firm. Okay, so who were the policy makers? The central bank. So you might have gone through all these things in lecture 1, and you saw कि expectation से आपके इकोनॉमी में मनी सप्लाई का जो भी चेंज होगा या मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी चेंज होगा, उसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे पड़ने वाली है, दैट इज अफेक्टेड बाय द
एक्सपेक्टेशन। इन फिलिप्स कर्व वी सॉ द रोल ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसको आप रिकॉल करना। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द central bank, how the credibility of central bank affects the decision making behavior of the economic agents in the economy। ठीक है, और इसके साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था what are the various ways through which central banks proves its credibility। there might be some rules or there might be some statements by the central bank or central bankers। ठीक है, और इससे डिसाइड होता था कि उनकी क्रेडिबिलिटी वाकई में सही है। सो देयर वर लॉज बाय सम कंट्रीज और देयर वर सम पॉलिसी स्टेटमेंट्स बाय द पॉलिसी मेकर्स to prove their credibility and have the effect of their policies as they could target to achieve in the economy। ठीक है, अगर उनको मान लेते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन करना था, तो पीपल कैसे मानेंगे कि वो मॉनेटरी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अगर सही नहीं है तो इसके लिए उनको क्रेडिबिलिटी पे बात करनी होगी। इफ दे आर क्रेडिबल, so whatever the policy decisions they would be announcing, economic agents उनका behavior उसी according change होगा and they will act as if the money supply has increased। monetary expansion के केस में बात हो रही है, तो ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, ये लेक्चर 1 की बातें थी। now coming on to lecture number 2, in the second lecture we discussed about fiscal policy or fiscal deficit and debt। ठीक है, we also derived what the relationship between fiscal deficit and debt is। ठीक है, आपने डेफिसिट के बारे में देखा था। so we were talking about deficit and deficit were of two types, fiscal deficit and primary deficit। ठीक है, तो जब भी डेफिसिट लिखा होगा that means we are talking about फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, और इसमें हमने रिलेशन भी बनाया था एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट FRBM एक्ट। FRBM एक्ट रिकमेंड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लिमिट इट्स डेट टू 40% ऑफ GDP while the state governments combined would be required to bring their debt level to 20% of the GDP। ठीक है, ये FRBM का रिकमेंडेशन था। अब इसका यूज कर सकते हो आप इंडियन इकोनॉमी में। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इन दिस केस वी सॉ व्हाट द डेफिसिट फॉर्मूला इज एंड वी सॉ दैट डेफिसिट एट टाइम पीरियड T, that was fiscal deficit। so fiscal deficit in time period T was change in debt level at time period T minus debt level in time period T minus 1, that is change in debt level from previous time period to the current time period। ठीक है, और इसी में हमने देखा था this would be R BT minus 1 plus GT minus TT, that means total expenditure incurred by the government in the current time period minus whatever the government has earned। गवर्नमेंट ने अर्न क्या किया, जो भी टैक्स कलेक्शन उनको हुआ। और यहाँ पे हमने जो ये TT की बात की थी दैट वाज आवर नेट टैक्स। ठीक है, ट्रांसफर्स को हमने माइनस कर लिया था। ठीक है, इसका आप रिकॉल कर पा रहे होगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर से सेकेंड लेक्चर को रेफर करना और इसको आप देखना। ठीक है, और इसी में हमने देखा था दैट डेट लेवल एट टाइम पीरियड T, दैट इज BT इक्वल टू 1 प्लस R BT माइनस 1 प्लस GT माइनस TT। ठीक है, दैट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन टाइम पीरियड T, मतलब करंट टाइम पीरियड पे जो भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इनकर करना है। और ये TT क्या है, जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को इस टाइम पीरियड पे देना है।
अब ये कब की बात हुई है, जब ये डेट पे, जब ये पूरा ही डेट ऑब्लिगेशन विद द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट पे कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन अगर देखा जाए तो एटलीस्ट इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन उसका होता ही है, जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा, दैट इज डेफिसिट। लेकिन ये है आपका डेट लेवल, ठीक है। तो डेट लेवल में आपका क्या है, जो भी डेट की वैल्यू होगी गवर्नमेंट की, और जो करेंट टाइम पीरियड का, यानी कि करेंट टाइम पीरियड में जो भी गवर्नमेंट प्राइमरी डेफिसिट हेल्ड कर रही है, सो दिस इज योर प्राइमरी डेफिसिट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेट टेकन टिल लास्ट टाइम पीरियड। और इसका वैल्यू कब का, इस टाइम पीरियड का। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डेट टेकन टिल लास्ट टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब पिछले टाइम पीरियड तक जितना भी डेट लिया गया है उसकी अगर आज के टाइम में वैल्यू निकाला जाए, दैट वुड बी 1 + r टाइम बी टी माइनस 1, ओके। और दिस जी टी माइनस टी टी इज योर प्राइमरी डेफिसिट ऑफ टाइम पीरियड टी, दैट इज करेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आपने डिस्कस किया था, ठीक है। Further, we also discussed if the government takes debt in time period T1. टाइम पीरियड T क्या होता था, 1, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम पीरियड पे द गवर्नमेंट टेक्स लोन एंड इफ द गवर्नमेंट रिफेज द फुल डेट ऑब्लिगेशन इन सेकेंड टाइम पीरियड, दैट वाज योर केस 1, ठीक है। तो क्या होता था, जो भी सेकेंड टाइम पीरियड पे उनको डेट पूरा ही पे करना है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैड टू बियर सम प्राइमरी सरप्लस इन द वेरी अल्टीमेट ईयर, यानी कि टाइम पीरियड 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कितना होना चाहिए, जो भी उनका डेट का ऑब्लिगेशन हो उसको मीट कर पाए। सेकेंड सिनारियो वी टॉक्ड अबाउट द जनरल केस वेयर इफ द गवर्नमेंट टेक्स द लोन इन टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1 एंड रीपेज इन टाइम पीरियड टी। और एक स्पेशल केस भी हमने देखा था टाइम पीरियड 5 का, ठीक है। तो इसको आप रिकॉल कर लेना। एंड इन थर्ड केस वी टॉक्ड अबाउट द स्टेबलाइजेशन ऑफ डेट बाय द गवर्नमेंट। स्टेबलाइजेशन क्या होता था, वट एवर द डेट द गवर्नमेंट हैज टेकन in time period t equal to 1, then in every subsequent time period the debt level would remain the same, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड t इक्वल टू 1 पे गवर्नमेंट ने लोन लिया है, यानी डेट लिया है, सो फ्रॉम टाइम 2, 3, 4, 5 इन सारे टाइम पीरियड्स पे सेम लेवल ऑफ डेट रहेगा। तो सेम लेवल ऑफ डेट रखने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू बी द इंटरेस्ट पेमेंट एवरी ईयर, और उतना ही पे करेगी वो, यानी कि हर टाइम पीरियड पे उसको प्राइमरी सरप्लस कितना रन करना है, जो भी उसकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसको आप याद रखना, ठीक है। ये आप रिकॉल कर पा रहे होगे पिछले क्लासेस से, दैट वाज क्लास नंबर 2। सो वी हैड एज्यूम्ड दैट इफ योर B1 वाज 1, ठीक है, एक यूनिट हमने मान लिया था। सो इफ योर BT इक्वल टू 1, दैट इज लोन इज 1, और ए BT कब था, कब लोन ले रहा था, जब T इक्वल टू 1 था। सो इट वुड बी B1 इक्वल टू 1। तो टाइम पीरियड 2 में जो पहला सिनेरियो था, इट विल हैव 1 + r टाइम्स 1, दैट मीन्स BT minus 1, that is 1 + r टाइम्स 1। 1 क्या है, BT - 1, और BT - 1 यहाँ पे T इक्वल टू 2, तो T - 1 वुड बी 1, सो इट वुड बी B1, और B1 कितना है, 1, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस GT कितना है, G2, और T कितना है, T2, ठीक है। सो कहने का मतलब, इफ यू वांट टू रीपे द लोन इन टाइम पीरियड 2, तो टाइम पीरियड 2 पे जब आप डेट रीपे करोगे, सो आपके पास टाइम पीरियड 2 खत्म होने पे यू विल हैव नो डेट लेफ्ट एट योर डिस्पोजल। सो डेट लेवल यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो इक्वेटिंग विथ दिस यू विल हैव 1 + r plus G2 minus T2 would equal 0. That means you will have T2 minus G2 equal to 1 + r, यानी कि
द गवर्नमेंट हैज टू रन अ प्राइमरी सरप्लस ऑफ 1 प्लस आर। ठीक है, अगर आपको मान लिया जाए कोई यहाँ 1 यूनिट नहीं होता, सो इट वुड बी 1 प्लस आर टाइम्स वाट एवर द डेट लेवल द गवर्नमेंट हैड टेकन इन टाइम पीरियड 1। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सरप्लस इतना रन करना पड़ता गवर्नमेंट को अल्टीमेट टाइम पीरियड पे लोन रिपे करना था, तो यानी कि केस 1 की हम बात कर रहे हैं। Similarly, in our generalized case, scenario number 2, we saw that the government, if never pays either interest or debt amount before time period T is any generalized, जो हमने अब 5th time period का भी एक example लिया था. So TT minus GT, that is primary surplus in time period T, should equal 1 plus R to the power T minus 1. ठीक है, यानी कि इतना का प्राइमरी सरप्लस गवर्नमेंट को रन करना पड़ेगा आपको डेट अगर पूरा इंटरेस्ट ओब्लिगेशन के साथ गवर्नमेंट पे करना चाहती है इन टाइम पीरियड टी, तो ठीक है। सो दैट वी डिस्कस्ड इन सिनेरियो नंबर 2. In the third case, we saw if the government wants to stabilize the debt, तो डेट स्टेबलाइज कर रही है मतलब हर टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज टू बियर द प्राइमरी सरप्लस ऑफ ओनली आर। ठीक है, और ये कब होगा? टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1 जब है, वहां पे तो लोन ली है, तो टाइम पीरियड 2 से, ठीक है, 2, 3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स फॉर एवरी टाइम पीरियड t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये सिनेरियो हमने सेकेंड क्लास में देख लिया था। ठीक है, अब आप याद रखेंगे इन सब चीजों को। इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन डेट टू जीडीपी रेशियो। सो द चेंज इन डेट टू जीडीपी रेशियो was denoted by BT upon YT minus BT minus 1 upon YT minus 1. That means debt to GDP ratio in time period T minus debt to GDP ratio in time period T minus 1. This is the change in debt to GDP ratio. ठीक है, this was equal to R minus G times BT minus 1 upon YT minus 1 plus GT minus TT upon YT। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपका चेंज इन डेट लेवल जो था वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता था। ठीक है, किस पे डिपेंड करता था? फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। ठीक है, यानी कि R माइनस जी। R इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, G इज योर आउटपुट ग्रोथ रेट। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर था। वट एवर द डिफरेंस विल बी, देन if it is positive, that means your debt will rise. If it's negative, then your debt to GDP ratio will fall. अगर वही ले लिया जाए debt to GDP ratio in the previous time period, that is BT minus 1 upon YT minus 1, अगर ये हाई होगा, so your debt to GDP ratio will increase. ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइयर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ठीक है, एंड थर्ड वाज द केस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट टू GDP ratio. If primary deficit to GDP ratio is higher, that means your debt obligation would be higher in the current time period also. That means whatever the debt level you had in the previous time period, in addition to it, you have to bear some of the debt because of current प्राइमरी डेफिसिट। मतलब करेंट टाइम पीरियड पे आपका प्राइमरी डेफिसिट है, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू मीट योर एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट थ्रू योर अर्निंग्स। ये गवर्नमेंट की बात हुई है। ठीक है, सो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट्स टैक्स कलेक्शंस, दैट मीन्स इट हैज टू बोरो इन दिस टाइम पीरियड एज वेल, एंड द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बोरोड टिल टाइम पीरियड T minus 1, मतलब प्रीवियस टाइम पीरियड तक इट हैड ऑलरेडी बोरोड सम अमाउंट। So if the government wants to borrow in this time period as also, and it has already borrowed till previous time period, so its debt will rise. ठीक है, तो ये 3 केस हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, इन द थर्ड लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या था? रिकार्डियन इक्विवेलेंस एक प्रोपोजिशन था जो रिकार्डो ने दिए थे
और रिकार्डो का कहना था कि रियल लाइफ में इट डजंट होल्ड, एंड व्हेन बैरो केम ही सेड दैट इट होल्ड्स इन रियल लाइफ आल्सो। सो इसका नाम दूसरा क्या था, रिकार्डो बैरो प्रोपोजिशन। तो एग्जाम में कुछ भी आएगा आप लिख दोगे। दैट मीन्स वट एवर द implication of deficit or the debt of the government would be, that would be equivalent। ठीक है, कहने का मतलब there would be no impact on output, ठीक है, किसका, if the government decreases its tax or increases its government expenditure। ठीक है, मतलब करेंट टाइम पीरियड पे अगर मान लिया जाए if the government is running a deficit, ठीक है, और इफ इन द करेंट टाइम पीरियड द गवर्नमेंट इज टेकिंग सम डेट, ठीक है, अगर ये दो केस होता है फिर आउटपुट पे आपका इंपैक्ट नहीं होगा। इफ आउटपुट इज नॉट इंपैक्टेड, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज वॉट एवर द गवर्नमेंट हैज टेकन एज अ डेफिसिट, द सेम वुड बी मेंटेन्ड, यानी कि इसको नलिफाई करेगा कौन, प्राइवेट सेविंग। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, मतलब गवर्नमेंट हैज हायर एक्सपेंडिचर देन इट्स अर्निंग, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज रनिंग इन डेफिसिट। ठीक है, तो प्राइवेट सेविंग्स will maintain deficit. So whenever the tax was cut or government expenditure was increased or the government was running a deficit or taking some loan or government was taking debt, ठीक है, तो वैसे केस में the output has to increase। क्यों? क्योंकि there has been fiscal expansion, but people know that whatever the tax cut has been done in this current time period, in future to finance the debt obligation the government will raise its tax, यानी कि फ्यूचर में consumers have to bear higher tax burden, so to nullify that they don't raise the consumption in this current time period. Why? Because they are knowing if there is the consumption in this time period, then in future when the taxes will increase, then they will have to bear larger cost of taxation, so their disposable income will be lesser, so they would have to cut down their consumption level in the future. So it's better that whatever the tax obligation will be on the consumer or the people, so people believe that इट्स बेटर टू सेव। ठीक है, और जो सेविंग पे आपको कुछ ना कुछ सेविंग्स रेट मिलेगा, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू रीपे इट्स डेट। ठीक है, तो ये सिनारियो हमने देखा था कि प्राइवेट सेविंग वाज फाइनेंसिंग द डेफिसिट और द debt obligation of the government, and hence on the economy the output was not being impacted। ठीक है, ये हमने रिकार्डियन इक्विवेलेंस का पढ़ा था, और इसमें हमने देखा था कि अगर फ्यूचर में बात किया जाए, सो फ्यूचर में आपका इफेक्ट देखा जाए आउटपुट पे या कंजम्पशन पे या सेविंग पे, किसी भी सिनेरियो में, सो यू विल सी ओवरऑल इफ वी मेजर इन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, यानी प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल कर अगर आप मेजर करते हो, देन यू विल फील दैट देयर हैज बीन नो इम्पैक्ट, यानी कि नो चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस बी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट आपका डेफिसिट रन करती है या डेट लेती है, फिर भी आपके आउटपुट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, इसके आगे हमने पढ़ा था वार अगर हो जाए तो वार को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। तो वार को फाइनेंस करने के लिए अगर गवर्नमेंट मान लो टैक्स इंक्रीज कर देती है करेंट टाइम पीरियड पे, तो डिस्टॉर्शन होगा, और अगर अभी टैक्स नहीं इंक्रीज करती है, इन फ्यूचर it will increase tax, so future generations will have to pay larger tax, so the burden of war will be shifted to future generation। क्यों? क्योंकि they have to sacrifice also,
करंट जनरेशन ने तो कर ही रहा है, तो फ्यूचर जनरेशन भी इस तरह से सेक्रीफाइस करेगी। ये कुछ लॉजिक दिए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 डिस्कस्ड dangers of high debt. Okay, so when the government had high debt to GDP ratio, so the investors felt that the government will default. उनको फीलिंग हुई थी, जो भी इन्वेस्टर्स थे, सो दे वुड आस्क फॉर रिस्क प्रीमियम। और यहाँ पे कौन रिस्क होगा? डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। तो डिफॉल्ट रिस्क के लिए डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम मांगेंगे, सो दे वुड आस्क फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पे करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू रन सम हायर प्राइमरी सरप्लस। जैसे इक्वेशंस अगर आप देख रहे हो, सो योर इक्वेशन वाज bt अपॉन yt माइनस bt माइनस 1 अपॉन yt माइनस 1 इक्वल टू r माइनस g y r माइनस g bt minus 1 upon yt minus 1 plus gt minus tt upon yt. So this was your equation. तो अब इसमें अगर आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टर ने आर बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम मांग रहे हैं। सो इफ दिस आर इज हायर, दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज टू इनकर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स टू pay back higher interest obligation, the government has to raise its what? Primary surplus. So primary surplus आपका रेज करने के लिए आपका क्या होगा? सरप्लस आपका tt माइनस gt हुआ। So to increase this you will have to increase the tax or cut down on your expenditure. तो टैक्स अगर आप इंक्रीज करते हो, so this will lead to distortion, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम करना जरूरी है। उनको आप फायर करोगे तो फिर आपकी जो बेसिक पॉलिसी जो चल रही है या बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो कैसे होगा? सो द गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इनइलास्टिक है, यू कांट चेंज दैट, ठीक है। जब ये नहीं हो सकता, सो दिस हायर इंक्रीज इन आर will lead to higher debt to GDP ratio. Higher debt to GDP ratio would mean higher debt obligation on the government. So the government after some time will not be able to repay its loan. So the government will default. ठीक है, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स को फील हुआ था वो हकीकत में आ गया। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो गवर्नमेंट ने डिस्टॉर्शन कर दिया टैक्स इंक्रीज करके या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करके, सो दिस इज द केस ऑफ कंट्रैक्शन यानी डिस्टॉर्शन। तो आपका आउटपुट ग्रोथ विल बी लेसर, सो योर आउटपुट ग्रोथ जी वुड बी लेस, दिस वुड फॉल, दैट मीन्स दिस डिफरेंशियल वुड अराइज, दैट मीन्स योर डेट टू जीडीपी विल अराइज। ये हमने देखा था आपके लेक्चर नंबर 4 में, एंड वी सॉ कि इससे आपका गवर्नमेंट लोन पे डिफॉल्ट कर रही है। और डेट डिफॉल्ट करती है तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि कुछ मेजर्स थे, जैसे कि अगर डिफॉल्ट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट कर जाती है, सो टू प्रिवेंट दैट देयर वर सम केसेस। फर्स्ट वाज डेट रिसिड्यूलिंग। डेट रिसिड्यूलिंग का दूसरा नाम था डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, इसको आप याद रखना। दैट मीन्स यू आर गिवन सर्टेन टाइम और उस टाइम पीरियड पे आपको कुछ अमाउंट पे करता रहना है। यू आर गिवन 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स और x नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स टू पे x डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लोन्स और डेट ऑब्लिगेशन दैट यू हैव, ठीक है, बंडल्स के टर्म्स में अगर बात किया जाए। या दूसरे सेंस में क्या हुआ था, प्राइवेट प्लेयर्स को यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो भी थे उनको इन्वॉल्व कर लिया गया था। सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स वाज देयर, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बोला गया एक्सेप्ट द हेयर कट। हेयर कट क्या होता था, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था या जो भी उनको मिलने वाला था अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से,
अब उनको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा. द गवर्नमेंट विल से लुक, आई एम going to default, you are going to get nothing. It's better that you accept the haircut and receive say 70% of the debt amount. ठीक है, आपको इतना तो मिल रहा है, नहीं तो आपको जीरो मिलेंगे when I will default. So it's better that you accept some haircut. ठीक है, या अगर इसके भी बात में नहीं देखते हो तो गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट एंड दिस डिफॉल्ट विल हैव different impacts on domestic economy and foreign economy. So foreign economy से अगर आपने लोन लिए हुए हैं सो आपका रिपुटेशन गया और फ्यूचर में आपको कुछ नहीं मिलेगा. लोन के टर्म पे बात करें तो इन फ्यूचर इफ यू नीड सम मनी देन none of the foreign investors would be willing to pay to the country. ठीक है, और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से आपने लोन ले रखे हैं और वहाँ पे डिफॉल्ट करते हो तो जो भी आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पैसे बचेंगे नहीं. तो अगर आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, सो इफ द प्राइवेट इन्वेस्टर्स मनी इज डिफॉल्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो वैसे केस में गवर्नमेंट अगर उनको नहीं दे रही है तो उनके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इश्यूज होंगी. उनका जो बजट था श्रिंक कर गया, उनको जो अमाउंट मिलने वाला था गवर्नमेंट से दे आर नॉट गेटिंग दैट. ठीक है, तो उनका लाइफ काफ़ी टफ हो जाएगा. वट एवर द सेवर्स मनी वाज विद द गवर्नमेंट एज अ लोन, द गवर्नमेंट हैज डिफॉल्टेड, सो द सेवर्स आर गोइंग टू गेट नथिंग. सो द सेवर्स will be severely impacted and the output will shrink. ठीक है, उनके डिसीजन मेकिंग में इश्यूज होंगी. और इसके अलावा अगर देखोगे, अगर मान लो गवर्नमेंट ने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक का मनी अगर आपके पास नहीं है दैट मीन्स बैंक विल रन इन लॉस, और बैंक जब लॉस में जाएगी तो बैंक आपका हो सकता है क्राइसिस से गुजर जाए, या हो सकता है द बैंक क्राइसिस में इवन हैपन with the case of bank not lending to any of the business houses or the government, और वहाँ पे आपका एक तरह से फिजिकल कंट्रैक्शन हो जाए और आपका आउटपुट ग्रोथ काफ़ी कम हो जाए. ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट काफ़ी नुकसान है और फिर आपकी इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी तो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, डेंजर्स ऑफ हाई डेट. ठीक है, नाउ कमिंग टू लेक्चर नंबर 5. लेक्चर नंबर 5 वाज डिज़ाइन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक क्या करती थी, मॉनेटरी टारगेट पॉलिसी के लिए मनी सप्लाई टारगेट करती थी. मनी सप्लाई टारगेटिंग करती थी पहले, और इससे मनी सप्लाई को इकोनॉमी में टारगेट करती थी. इस पे क्वेश्चन आता था विच मनी सप्लाई, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, ये आप मनी एंड बैंकिंग में पढ़ोगे, अभी के लिए आपके काम का नहीं है. बस यही समझो कि इंडिया के केस की तरह देखा जाए तो M1 को टारगेट करोगे या M3 को टारगेट करोगे. अगर M1 को टारगेट करोगे तो ज़्यादा लिक्विड को टारगेट कर रहे हो, लेकिन M3 जो है ये ज़्यादा क्लोज बोला जाता है आपके मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी की बात किया जाए तो बेटर मेजर आपको बोला जाए तो दैट वुड बी M3. इंडिया के केस में अगर आप देखते हो तो M3 को गवर्नमेंट टारगेट कराना पसंद करती है. सो द सेंट्रल बैंक टारगेट्स M3. ठीक है, ये आपके काम का अभी के लिए नहीं है, जब आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में तब आपको ये सब काम आएगा. ठीक है, फिर बाद में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्फ्लेशन को टारगेट करना शुरू किया. इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आपका कौन सा रूल आया था, टेलर्स का रूल. ठीक है, और टेलर्स रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या था, एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन लेवल के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, और इस इंटरेस्ट को आप टारगेट करोगे. ठीक है, और किससे टारगेट करोगे, वाट एवर द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट यू हैव दैट यू कैन कंट्रोल. ठीक है, इसके थ्रू आप इंटरेस्ट रेट को टारगेट करो, टारगेट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट यानी नॉमिनल वाला रीच कर पाते हो, देन यू कैन रीच ऑन टू द टारगेट
इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था किस में, टेलर्स रूल में, ठीक है। तो दिस वर ऑल द थिंग्स दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट 5 क्लासेस, ठीक है। आप सबको रिवाइज करना और देखना कहाँ पे क्या कर सकते हो, कैसे चीज़ें हो रही है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है देन वी विल श्योरली लुक इनटू इट। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और अपना डाउट रिजॉल्व कराइए। इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड विथ अस देन you can use the holy offer to join with us and learn better, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।